Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, I'm going to discuss about some important MCQ questions which are from NCERT 10+1 Biology Chapter 1, 2 and 3. These MCQ are mainly important for the NEET and they are also important for the several exams of the botany. These MCQs are based upon the plant taxonomy and the plant kingdom. So let's just start with the first question. The first question says choose the incorrect statement. So we have to choose the incorrect one. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन. ऑफ कोर्स बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो ग्रो सेल डिवीजन से ही करते हैं, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है. इन मेजॉरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. हायर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. हमें इनकरेक्ट चूज करना है, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं, हालांकि वो एक्सटर्नली ग्रो करते हैं, इंटरनली नहीं, लेकिन ग्रो तो करते हैं. इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है. ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये बात भी सही है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ग्रोथ. तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी दिस सी. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have to select the incorrect match from the following organisms with their mode of reproduction. Organisms दिए हैं, उनके mode of reproduction दिए हैं, तो सभी जो है करेक्टली मैच है. प्लेनेरिया करेक्टली मैच नहीं है, यानी आंसर हमारा यही होगा, बिकॉज प्लेनेरिया में जो होता है रीजनरेशन होता है, ट्रू रीजनरेशन. That is why the answer for second question will be this, that is C. Let's just move on to the next question. Okay, next question says we have to tick the boxes which are defining features of the living organism. तो cellular organization defining है, metabolic reactions defining है, consciousness भी defining है, but reproduction defining नहीं है. तो तीन जो होंगे वो टिक किए जाएंगे यहाँ पर. These three are the defining features. We have to choose the wrong pair. So ICBN or ICN, nomenclature of the plant, of course, International Code of Botanical Nomenclature. So this one is correctly matched. ICZN is also nomenclature body for animals. This is also correctly matched. BC, the bacteriological code is for the naming of bacteria. But the bacteriophage and virus are not bacteria. Bacteriophage भी वो virus होते हैं जो bacteria को affect करते हैं, as well as normal virus. So this match is wrong. ICNP, International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. तो ये भी correctly match है, यानी हमें wrong pair choose करना था, तो आंसर होगा C. Because BC is a nomenclature body for bacteria, not for the virus. Virus के लिए तो International Code of Nomenclature of Virus होता है, International Code of Virus Nomenclature, ICVNC. So C is the correct answer for 4. Next question says which of the following is not a component of binomial nomenclature given by the Sir Linus. Carl Linus, which was the father of taxonomy, give their nomenclature system, which was the binomial nomenclature, which is having one generic name, other is the specific epithet. तो एक जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीसीज. जीनस नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, स्पीसीज के नाम का पहला लेटर स्मॉल होता है. तो जेनेरिक नेम होते हैं और नेम ऑफ स्पीसीज होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में. नेम ऑफ फैमिली नहीं होता, तो दिस विल बी द आंसर. बी आंसर होगा, बिकॉज नेम ऑफ फैमिली इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट इज अ सेपरेट टेक्सॉन. वो एक सेपरेट टेक्सॉन होता है. यहाँ पर हमें करेक्ट नेम चूज करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, स्पीसीज का स्मॉल, तो उसके अकॉर्डिंग मेंजिफेरा इंडिका इज द करेक्ट आंसर. इटैलिक्स में लिखे जाते हैं या तो नेम या फिर अंडरलाइन किया जाता है सेपरेटली, इस तरह से. तो यहाँ हम अंडरलाइन करते हुए दिखा सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a component of taxonomy? तो taxonomy के 4 या 5 कंपोनेंट होते हैं. आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड फाइलोजेनी. टेक्सोनॉमी में 4 कंपोनेंट होते हैं, सिस्टमैटिक्स में 5 कंपोनेंट होते हैं, फाइलोजेनी भी इंक्लूड किया जाता है. तो आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट है, क्लासिफिकेशन भी है, नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करना भी है, उनको क्लासिफाई करना भी है, आइडेंटिफाई करना भी है, बट नॉमिनेशन कोई भी जो है फीचर नहीं है या कंपोनेंट नहीं है. तो यही आंसर होगा. What is the correct ascending order of the plant classification hierarchy? तो ascending में क्या होता है, species, genus, genus मिलकर एक family में होते हैं,
फैमिलीज बहुत सारी ऑर्डर में होती हैं, ऑर्डर मिलकर क्लास बनाते हैं, बॉटनी में क्लासेस मिलकर डिवीजन, और जूलॉजी में एनिमल्स में फाइलम बोलते हैं, और डिविजन्स मिलकर किंगडम बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी विल बी द आंसर। Which of the following is not a species? Name indica species है, Solanum tuberosum, tuberosum भी species है, Leo भी species है, Panthera एक genus है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया था कौन सी स्पीसीज नहीं है। Which of the following is identification tool? प्लांट्स या एनिमल्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या यूज हम कर सकते हैं? तो हर्बेरियम भी यूज किया जाता है, टेक्सोनॉमी कीज भी यूज किए जाते हैं, फ्लोरा भी यूज किए जाते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अब, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिफिकेशन टूल्स। Let's move to the next questions. So the question says, Indian Botanical Garden and National Botanical Research Institute are located in। फेमस बॉटनिकल गार्डन है दो इंडिया के, एक तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कलकत्ता में है या कोलकाता में है, या नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं, या NBRI कहते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इसके अलावा एक और बॉटनिकल गार्डन है, लियोड बॉटनिकल गार्डन, वो जो है दार्जिलिंग में, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो दो जो मेन है, कलकत्ता एंड लखनऊ विल बी द आंसर। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अबाउट मोनेरा। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ऑफ कोर्स सिंगल सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेल वॉल एब्सेंट यहाँ पर लिखा है, जबकि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, चाहे आर्की बैक्टीरिया हो चाहे यू बैक्टीरिया हो, केवल एक माइकोप्लाज्मा के अलावा बाकी सब में सेल वॉल है। तो ये पॉइंट गलत है। और ऑटोट्रॉप एज वेल एज ऑटोट्रॉप, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टेट होती है, ये भी बात सही है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता मोनेरा में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, क्योंकि यहाँ पूछा था इनकरेक्ट क्या है, तो सेल वॉल एब्सेंट होना इनकरेक्ट है, बिकॉज सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फंगी एंड एनिमेलिया आर रिलेटेड। क्या सिमिलरिटीज है फंगस किंगडम में और एनिमेलिया किंगडम में? तो थैलॉइड बॉडी केवल फंगस की होती है, एनिमल्स की नहीं। सेल वॉल कंपोजिशन, एनिमल में सेल वॉल होती नहीं, फंगस में काइटिन की बनी है। दोनों हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, तो आंसर क्या होगा? हेट्रोट्रॉपिक, बिकॉज फंगस भी हेट्रोट्रॉपिक है, चाहे पैरासाइट हो चाहे सेप्रोफाइट हो, और एनिमल्स भी जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है, दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंड है। द स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स ऑफ द नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है, मोनेरा में आते हैं अकॉर्डिंग टू विटेकर। कुछ लोग, कुछ बायोलॉजिस्ट इसको एल्गी भी कहते हैं, बिकॉज दे आर साइनोफाइसियन एल्गी। तो कैरेक्टर तो प्लांट वाले हैं, फोटोसिंथेटिक है, बट क्योंकि प्रोकैरियोटिक है उस वजह से ये मोनेरा में आते हैं। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग सेल्स होती हैं उनको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। हेट्रोसिस्ट इस तरह के सेल्स होते हैं जिनका काम मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर सकता है। इट मींस दे कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। Let's move to the next questions. Okay, let's see. Question says, choose the correct statement regarding the euglenoids among these. तो यहाँ पर लिखा है करेक्ट चूज करना है। पेलिकल अ फ्लेक्सिबल लेयर विच इज मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ऑफ कोर्स यूग्लिनोइड्स में पेलिकल एक लेयर होती है सेल वॉल की जगह पर वो प्रोटीन्स की बनी होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट की। तो ये बात गलत है, करेक्ट हमें चूज करनी है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर, ये बात एकदम सही है। एक स्थिर पानी में, स्टैंडिंग वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में। दे आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉप, ये बात भी गलत है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं लाइट की प्रेजेंस में। दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, प्लांट के भी एज वेल एज एनिमल्स के भी। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ना कि यूग्लेनॉइड्स। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस, दैट मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट पेयर हमें देखना है, आर्कीबैक्टीरिया मोनेरा में ही आते हैं, ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ में ही आते हैं, डिजीज कॉज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। पैरामीशियम जो होते हैं वो भी प्रोटोजोआ में आते हैं, सॉरी वो भी प्रोटिस्ट में आते हैं, ठीक है, या प्रोटोजोन्स में ही आते हैं, ना कि फंगस में। तो ये इनकरेक्ट है। मार्केंशिया ब्रायोफाइट ऑफ कोर्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस, क्योंकि हमें इनकरेक्ट पेयर जो है वो चूज करना था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग दीज बेस्ड ऑन द फंजाई। तो फंगस के कुछ कैरेक्टर हमें इनकरेक्ट चूज करने हैं। लाइकेंस एंड माइकोराइजा बोथ हैव फंगस, ऑफ कोर्स दोनों में होता है। डाइकैरियन फेज जो होती है
ठीक है, जिसमें दो न्यूक्लियस अभी तक मर्ज नहीं होते, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस बने रहते हैं, तो ऐसा एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज में देखने को मिलता है, ये भी करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा जो होती है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में यूज की जाती है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Asexual spores are widely found in the class Basidiomycetes. This statement is incorrect because asexual spores are generally absent in the Basidiomycetes. So this correct statement will be incorrect and this will be our answer. Which of the following is not fungi? मशरूम या टोडस्टूल भी फंजाई होते हैं, यीस्ट भी फंजाई है, एस्कोमाइसिटीज में आती है, ये बेसिडियो में आते हैं, ठीक है, कुछ एस्को में भी आते हैं ऑल्दो जो मशरूम्स हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर कम इन बेसिडियोमाइसिटीज। कैलामाइडोमोनास जो है वो एल्गी है और एस्परजिलस भी फंगस है, फंगाई है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा कैलामाइडोमोनास, क्योंकि हमने पूछा था फंगस कौन सी नहीं है, तो कैलामाइडोमोनास सिंस इट इज एल्गी सो इट वुड नॉट बी अ फंगस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। The question says kingdom Monera include, तो मोनेरा में यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, बट बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस नहीं आते। विटेकर के अकॉर्डिंग वायरस किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में नहीं आते, क्योंकि वो सब लिविंग है या नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं जब तक वो किसी सेल मशीनरी में नहीं है। तो बैक्टीरियोफाज वो वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं वो कहीं भी नहीं आते, इसलिए आंसर होगा, सॉरी इसमें पूछा इंक्लूड क्या है, तो इंक्लूड दोनों है, बीबी और सीबी, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। आंसर होगा डी, क्योंकि यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा दोनों ही जो है इंक्लूड होते हैं किसमें, मोनेरा में, सो आंसर विल बी डी। डायटोमेशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये एक कंपाउंड होता है जो मेनली डाई एटम्स से मिलता है और यूज किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में एज वेल एज एक्सप्लोजिव इंडस्ट्रीज में भी, इससे कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। तो डायटोमेशियस अर्थ कंपाउंड जो है वो मिलता है डाई एटम्स से। डाई एटम्स ऑल्दो प्रोटिस्ट हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी हैं, लेकिन है एल्गे, ठीक है, तो ये मिलता है एक एल्गी से, ना कि फंगस से, ना एनिमल से, ना ही एक्सप्लोजिव अर्थक्वेक से। तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एल्गी दैट आर डायटम्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट सेज द कैप्सोमर्स आर, तो कैप्सोमर जो होते हैं, देखिए वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहते हैं, दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। So this protein coat, which is called capsid, is made up of small units which are called capsomers. So general TME में tobacco mosaic virus में जो capsid होता है वो capsomers से ही बना होता है. So these are the monomer units of the virus protein coat. Move on to the next question. Which of the following character better describe the viriyoids? तो viriyoid जो होते हैं वो वायरस का और स्मॉलर फॉर्म है, ठीक है, जो सेवरल काइंड ऑफ डिजीज को कॉज करते हैं। तो क्या बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि ये फ्री आरएनए होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड, यानी वायरस से कैसे डिफरेंट है ये, इनके अंदर क्या है, फ्री आरएनए है विदाउट द प्रोटीन कोड, केवल जेनेटिक मटेरियल है वो भी आरएनए और प्रोटीन कोड नहीं है। ज्यादातर ये प्लांट्स में पाए जाते हैं विरोइड्स, या प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। तो डेंजरस फॉर्म ऐसा भी कुछ नहीं है कि वायरस से ज्यादा डेंजरस है। लार्जर देन दी वायरस, जनरली स्मॉलर होते हैं ना कि लार्जर, क्योंकि इनमें प्रोटीन कोड नहीं है। तो आंसर होगा फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। दिस स्टेटमेंट बेटर डिस्क्राइब्स दी विरोइड्स। Let's discuss the next questions. So we have to tell the incorrect statement about the prions. Prions जो होते हैं वो misfolded proteins होते हैं, ओके, और जनरली जो होते हैं हमें ये वायरस के इक्वल ही साइज के होते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं इनके बारे में। दे आर मिसफोल्डेड प्रोटीन, ये बात सही है। दे आर मच स्मॉलर इन साइज विद द वायरस, बट ये तो इक्वल होते हैं साइज में, तो ये बात गलत है, स्मॉलर नहीं इक्वल होते हैं। दे कॉज बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी, बीएससी बोलते हैं, मैड काउ डिजीज बोलते हैं। ऑफ कोर्स प्रियॉन्स ही कॉज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रियॉन्स क्या डिजीज कॉज करते हैं। इसी का ह्यूमन होमोलॉग डिजीज है एक, क्रुट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज, सीजीडी बोलते हैं, तो ये भी प्रियॉन्स कॉज करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की जो है होमोलॉगस डिजीज हैं, ये एनिमल्स में होती है, ये ह्यूमंस में। सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट दिस वन, बी, क्योंकि ये इक्वल होते हैं ना कि स्मॉलर, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंगल पार्टनर ऑफ द लाइकेंस इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड माइकोबायोंट। एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट कहते हैं और फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट, सो आंसर विल बी माइकोबायोंट। So next question says the lichens are indicator species of the, so lichens are indicator species of air quality. Soil के लिए अर्थवर्म वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो है लाइकेंस जो होते हैं वो एयर क्वालिटी के इंडिकेटर हैं। बैड एयर क्वालिटी में या पोल्यूशन जहां पर होता है वहां लाइकेंस ग्रो नहीं करते। द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर,
वाज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल लीनियस का था, फाइलोजेनेटिक के लिए तख्ताजन या एंगुलर पेंटल के हैं, ठीक है। फिनेटिक के लिए स्मिथ एंड सॉकल का क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सो बेसिकली बेंथम एंड डूकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। Next question is from taxonomy itself. The study of the evolution and evolutionary relationship is called phylogeny. Phylogeny बोलते हैं ancestral study को। Most common asexual spores from the algae or the asexual motile spores in algae are zoospore. zoospore जो होते हैं most common asexual spore हैं algae के अंदर और motile होते हैं। Move to the next question. So here are we have to tick the characters of the algae, leaving the check box blank for a character which does not refer to the algae. तो algae के जो जो character हैं वो हम choose करेंगे। So मैं यहाँ पर टिक करके आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एल्गी का कैरेक्टर नहीं है, एम्ब्रियो नहीं बनता एल्गी में, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ऑर्गन एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग सेल काम करती हैं, टिश्यू नहीं बनाती। ऑटोट्रॉपिक है, एबनॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं जैसे आइस में, हॉट स्प्रिंग्स में। लाइकन के पार्टनर है, फाइकोबायोट कहते हैं पार्टनर को। सीड नहीं बनते, सीड तो क्रिप्टोगैम्स में किसी में भी नहीं बनते। फ्लावर्स भी नहीं बनते, वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, जाइलम फ्लोएम। इससे आगे मैं एक बार इन टिक्स को डिलीट कर रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सो वैस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, एम्फीबियंस भी नहीं कहलाते हैं। और गैमेटोफाइट जो होता है डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट पर, ये बात एकदम सही है। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो डोमिनेट करती है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से बॉक्सेस मैंने जो है टिक किए हैं, वही जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं एल्गी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एल्गी सोर्स होते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स का, सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज में। सो एक ऐसा ही कंपाउंड है अगर अगार, जो मेनली रिसर्च में यूज किया जाता है या कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है। तो ये किस एल्गी से ऑब्टेन होता है? इट इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टू एल्गी, जिलेडियम एज वेल एज ग्रासिलेरिया। सो आंसर विल बी ए एंड बी, बोथ ऑफ देम आर रेड एल्गी। तो ये मिलता है रोडोफाइसी से। एल्गीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फियोफाइसी। एल्गीन जो होता है सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, कंपाउंड है एल्गीन, किसमें? फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में। तो कभी कभी कैल्प लिखा जाता है, सीवीड्स लिखा जाता है, तो ये सभी फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के नाम है। तो एल्गीन इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मेजर पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी? तो फ्यूकोजेंथिन होता है मेजर पिगमेंट। फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी में होता है, क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल डी इज आल्सो इन रेड एल्गी। So answer will be fucoxanthin. Along with the fucoxanthin, chlorophyll C is also present, chlorophyll A is also present, but the major pigment is fucoxanthin. Chlorophyll A सभी classes of algae में होता है। All photosynthetic organism, whether they are bryo, pterido, gymno, angio, algae, all the classes of angio algae also, they are necessarily having chlorophyll A. Chlorophyll A सब में होता है। उसके अलावा कुछ और पिगमेंट्स होते हैं जो वहाँ मेजर पिगमेंट होते हैं। So let's discuss the next question. What is not correct about the rhodophysi? रेड एल्गी का करेक्टर क्या नहीं है? फूड रिजर्व क्लोरिडिन स्टार्च होता है, यस इट इज करेक्ट। फाइकोएरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, दिस इज आल्सो करेक्ट। टू अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैजिला आर प्रेजेंट, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज मोटाइल नहीं होता रोडोफाइसी। तो एक भी फ्लैजिला नहीं है, जीरो। whatever भी दे आर इक्वल और अनइक्वल, सो डजंट मैटर, क्योंकि यहाँ पर फ्लैजिला है ही नहीं। तो टू, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। Discuss the next questions. Next question says the peat is obtained from, peat जो होता है कार्बन कंपाउंड होता है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी जो है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। जब किसी प्लांट को, एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसको ब्रायोफाइट के साथ ले जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं। तो पीट जो है एक मॉस या ब्रायोफाइट से ऑब्टेन होता है, इसी वजह से उसको पीट मॉस भी कहते हैं उस ब्रायोफाइट को। सो दैट इज स्फेग्नम। लाइकन तो ब्रायोफाइट ही नहीं है, मार्केंशिया जो है वो लीवर वोट छोटे ब्रायोफाइट है, एंथोसिरोस भी एक तरह से छोटे ब्रायोफाइट हैं। हायर जो ब्रायोफाइट होते हैं मॉसिस, उसमें एक मॉस है स्फेग्नम, तो इसे पीट मॉस भी कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि इससे पीट मिलता है। सो आंसर विल बी स्फेग्नम। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स भी हैं प्लस वैस्कुलर भी हैं। एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, इनमें क्रिप्टोगैम्स, इनमें वैस्कुलर प्लांट तो हैं ये तीनों,
इनमें जाइलम फ्लोएम होता है तीनों में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियोस्पर्म्स में, और इवन स्टीलर सिस्टम यानी जाइलम फ्लोएम इवॉल्व भी टेरिडोफाइट से हुआ था। और क्रिप्टोगैम होते हैं ये तीन, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। तो देख लीजिए कॉमन केवल टेरिडोफाइट है जो वेस्कुलर भी है और क्रिप्टोगैम भी है। सो द आंसर विल बी टेरिडोफाइट। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also another important question. Although they all of these questions are very important and directly taken from the NCERT. I have made them myself, and all of them we can say are important, especially with reference to the NEET. The sporophyte derived nutrition from the gametophyte in, so answer will be bryophyte, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ही स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट की तरह काम करता है। स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक नहीं है, न्यूट्रिशन डिराइव करता है गैमेटोफाइट से। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं, स्पोरोफाइट उन पर रहते हैं रिसेसिव में। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ब्रायोफाइट्स। Which of the following is not a pteridophyte? So Lycopodium is a pteridophyte, Selaginella is a pteridophyte, Ecosystem is also a pteridophyte. That is why all of these three are pteridophyte. So answer will be none of the above. क्योंकि ऐसा कोई भी मेंबर नहीं है जो pteridophyte ना हो, तो आंसर should be none of the above because all three are pteridophytes. Let's discuss the next questions. Coralloid roots are found in the cycas. Coralloid root होते हैं नॉस्टॉक या एनाबिना, जो साइनोबैक्टीरिया है वो रूट्स के अंदर एम्बेडेड होता है, इनको कोरोलॉइड रूट कहते हैं जो साइकस में पाए जाते हैं। पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है, रूट का और फंगल का एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ कोरोलॉइड रूट पूछा, आंसर विल बी साइकस। Which of the following plant is a living fossil? गिंको बाइलोबा का लिविंग फॉसिल्स कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, फॉसिल्स हैं, और स्टिल इट इज हैविंग अदर वेराइटीज ऑफ द लिविंग प्लांट्स आल्सो। कुछ स्पीसीज जो है इसके लिविंग भी है, जैसे गिंको बाइलोबा। So it is a living fossil. Answer will be ginkgo, which is a gymnosperm. ये एक जिम्नोस्पर्म है। Let's come to some questions from the angiosperms also. So there is a question: the gametophyte, female gametophyte develops from. एंजियोस्पर्म्स में जो गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होते हैं वो डेवलप होते हैं मेगास्पोर से। स्पोर से डेवलप होते हैं अल्टीमेटली गैमेटोफाइट्स। अगर मेल गैमेटोफाइट है तो माइक्रोस्पोर से, फीमेल गैमेटोफाइट है तो मेगास्पोर से। तो मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होता है उससे माइटोसिस के थ्रू फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। हाँ, खुद मेगास्पोर जो होता है वो मियोसिस से बनता है। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉइड, वो मेगास्पोर बनाती है मियोसिस से। 4 सेल बनते हैं जिसमें से केवल एक फंक्शनल रहती है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। उस फंक्शनल सेल को हम मेगास्पोर कहते हैं जो मियोसिस से बनती थी। बट यहाँ गैमेटोफाइट पूछा है तो गैमेटोफाइट बनता है, आंसर होगा सी, मेगास्पोर से माइटोसिस के थ्रू। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। एम्ब्रियोसैक में जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या जो सेंट्रल सेल है वो डिप्लॉइड है, उसके पास जब एक मेल गैमीट आता है तो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल बनती है, ठीक है, जो आगे जाकर एंडोस्पर्म बनाएगी, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। एक और गैमीट जाता है एग के पास जो जाइगोट बनाता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। इसको सिनगैमी कहते हैं जब जाइगोट के पास गैमीट जाता है, और इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं जब सेंट्रल सेल के पास गैमीट जाता है जो एंडोस्पर्म बनाएगा। If you are having doubt in the statement which I have just conveyed, you can see the recording or you can precede the recording. पीछे करके आप देख सकते हैं। Next question says the unit of androecium is, so it would be stamen. Pollen grain unit नहीं होगी, androecium की unit stamen होती है। सभी प्लांट्स में androecium के आगे जब नंबर लिखा जाता है तो stamen का नंबर लिखा जाता है फ्लोरल फॉर्मूला में। Next question says the antipodal cells in embryo sac are located towards. तो एक ट्रिक होता है, एम्ब्रियो सैक में 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, 3 ही सेल एग एपरेटस में होते हैं, खुद एक एग, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है, उसके अलावा ये सेंट्रल सेल। तो एंटीपोडल सेल होते हैं चैलेजल एंड की तरफ, यू कैन रिमेंबर इट बाय AC, एंटीपोडल सेल, C चैलेजल एंड, ME माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग होता है, दिस इज एग। तो एंटीपोडल सेल होंगे चैलेजल एंड की तरफ, दिस वुड बी द आंसर। Next question says the only diploid cell of the embryo sac. So again, I'm drawing the structure of the embryo sac. There are 3 antipodal cells, all of them are haploid. There are 3 cells egg, 2 synergids, they are also haploid. So these 6 cells are haploid.
The seventh cell, which is the secondary nucleus, this is diploid because it is having two nucleus. They are called polar nuclei. Two polar nuclei are there, that's why this single cell is diploid. तो केवल एम्ब्रियो सैक में एक ही सेल डिप्लॉयड होती है, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस और दी सेंट्रल सेल, जो गैमेट के साथ मिलकर हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बनाएगी, मदर सेल, एंडोस्पर्म मदर सेल. सो जाइगोट इन द एंजियोस्पर्म इज द रिजल्ट ऑफ सिनगैमी, ये भी मैंने बताया था. यहाँ एक गैमीट आना ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, और यहाँ एग के पास गैमीट जाना. Male gamete, when comes to the female gamete egg, they will form the zygote, which is called syngamy. So answer will be syngamy. So move on to the next question. So double fertilization which was proposed by the Navashin, यहाँ भी एक अपने आप में क्वेश्चन है, किसने दिया था डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, किसने बताया था. So it was Navashin, it is a scientist name. So it is unique to the angiosperms only. Don't be confused between the angio and gymno. केवल डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में ही होता है. एंड व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? दो गैमेट्स का फर्टिलाइज करना. एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, एग apparatus, synergids. एक गैमेट जाता है यहाँ पर, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म मदर सेल बनाएगा या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एक फर्टिलाइजेशन हो गया. दूसरा गैमेट जो कि मेनली एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा, आने वाला प्लांट जाइगोट एम्ब्रियो और उसी से बनेगा, तो ये दूसरा फर्टिलाइजेशन है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, व्हिच इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म ओनली. क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होते हैं वो इस तरीके से नहीं बनते, खुद फीमेल गैमेटोफाइट जो वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है. एंडोस्पर्म व्हिच इज मेनली मेंट फॉर द न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन से सेलेक्ट द हैप्लॉइड फॉर्म फ्रॉम गिवन स्टेजेस ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट. सीड डिप्लॉइड होते हैं, एम्ब्रियो से बने हैं. एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होते हैं, फ्लावर भी डिप्लॉइड होते हैं क्योंकि स्पोरोफाइट यानी प्लांट से ही बने हैं, खुद प्लांट डिप्लॉइड है. पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं. पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है जो मियोसिस के थ्रू बना है. So these are some questions from the chapter 1, 2 and 3, and they are also important for the various competitive examinations as well as the MSc botany entrances, because they are also based upon the plant taxonomy and plant kingdom. So in the upcoming parts, on the upcoming videos, in the upcoming time, we are going to discuss more about more questions also. So thank you very much. Have a good time.